We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello students, this is the part 3 video of our graph theory. So in this we will first start with subgraph. So what is subgraph? We have already seen in the previous chapter, that is sublattices. So I hope that you all were clear with this. So if you are clear with that sublattices part, then you can easily understand this concept. So what is subgraph? Let VH means vertices of H graph be the set of nodes of graph H, and VG be the set of nodes of a graph G, such that VH, that is vertices of H, is subset of VG, that is vertices of G. If in addition every edge in H is also an edge of G, then graph H is called subgraph of G, which is expressed by H belongs to G. So here you can see that here there is one graph, that is G. यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो हमें इसका अगर सब ग्राफ फाइंड करना है, सो अगर हम कंसिडर करें कि ये हमारा सब ग्राफ है या नहीं, सो यस बी से ए कनेक्टेड है, यहाँ पे भी बी से ए कनेक्टेड है, और ए से सी कनेक्टेड है, यस ए से सी कनेक्टेड है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा वी ऑफ एच जो है विच इज बिलोंग्स टू वी ऑफ जी, बिकॉज इसके सारे एजेस और वर्टाइसेस हमारे जो मेन ग्राफ है उसमें आ रहे हैं. सो वी कैन call this as subgraph. Now what is next? Next is converse of a digraph. We can also define converse of a digraph, that is G equals to VE be a digraph. Converse means we can consider this symbol as converse, that is G converse equals to V comma E converse. E converse means your edges, in which the relation E converse is the converse of the relation E. आपको एज को कन्वर्स करना है. यहाँ पे द डायग्राम ऑफ जी कन्वर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जी बाय सिंपली रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द एजेस इन जी. अगर आपके पास कोई भी ग्राफ के अंदर एजेस है, वो डायरेक्टेड एजेस है, अगर आप वो एजेस के डायरेक्शन उल्टी कर दोगे तो आपको वो मिल जाएगा आपका कन्वर्स ग्राफ. सो द कन्वर्स जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सल और डायरेक्शनल ड्यूअल ऑफ अ डायग्राफ जी. सो ये आपका एक डेफिनेशन हो गया है. अगर आप एज को उल्टा कर दोगे, एज को कन्वर्स कर दोगे, तो वो आपको कन्वर्स ग्राफ मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ अ ग्राफ. इफ अ सिंपल डायग्राफ जी वी ई is reflexive, symmetric and transitive, we have already seen what is reflexive, symmetric and transitive, then the relation E must be equivalence relation on V. Hence V can be partitioned into equivalence classes. Now what is next? Next is we have to see the paths, reachability and connectedness. The first definition is of path. Any sequence of edges of a digraph such that terminal node of the edge in the sequence is the initial node of the edge, if any, appearing next in the sequence, define a path of a graph. आपका पाथ कौन सा कहलाएगा? सो यहाँ पे हम डेफिनेशन पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं. द टर्मिनल नोड ऑफ एनी एज इन द सीक्वेंस इज द इनिशियल नोड ऑफ द एज. अगर आपका जो ग्राफ के अंदर जो आपका टर्मिनल नोड है और आपका इनिशियल नोड है, अगर वो सेम हो जाएगा तो वो आपका एक पूरा पाथ कहलाएगा. अगर हम यहाँ पे एक नोड कंसीडर करें, दिस इज ए वर्टाइसिस, दिस इज बी, दिस इज सी. सो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें, सो अगर हमको यहाँ पे ए वर्टाइसिस को अगर हम कंसिडर करें, सो ए से ए तक हमें पहुँचना है. सो आप यहाँ से ए से बी जा सकते हो, बी से सी जा सकते हो और सी से ए जा सकते हो. तो ये हमारा हो गया पूरा पाथ.
यहाँ पे आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हो, पाथ ऑफ द ग्राफ. The path is said to traverse through the nodes appearing in the sequence originating in the initial node of the first stage and ending in the terminal node of the last stage of the sequence. यहाँ पे अगर हम पाथ को ट्रावर्स कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी फर्स्ट एज होगी जो कंसिडर होगी हमारे पाथ के अंदर, दैट इज़ फ्रॉम ए टू बी, और ये हमारी लास्ट एज होगी दैट इज़ फ्रॉम सी टू ए. यहाँ पे यही लिखा है कि ये हमारी जो फर्स्ट एज है वो क्या कहलाएगी, ओरिजिनेटिंग एज, और जो लास्ट एज हमारी है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल एज. So this is the definition of path and originating and terminating age. Now the next definition is the number of ages appearing in the sequence of path is called length of the path. Length of the path means अगर हमारे पास number of ages है और path के अंदर जितनी भी हमारी number of ages आती है उसको हम क्या बोलेंगे, length of the path. यहाँ पे हमारी कितनी ages है, 1, 2 and 3. So for this diagram, for this path you have the length that is 3. Okay, now what is the next definition? Next definition is first of all consider this simple diagram. See, हमने यहाँ पे तो एक बहुत ही सिंपल डायग्राफ देखा है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राफ यहाँ पे हम देखते हैं. और कंसिडर दिस डायग्राफ इन द फिगर सम ऑफ द पाथ ओरिजिनेटिंग इन नोड 1 एंड एंडिंग इन नोड 3. यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है, नोड 1 और 3 के बीच में हमें कितने पाथ्स मिल रहे हैं. यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे कितने सारे पाथ यहाँ पे हैं. सो 1 से 3 तक हमें जाना है तो कौन कौन से डिफरेंट पाथ्स मिलेंगे. यहाँ पे 6 पाथ टोटल हमें दिए हुए हैं. 6 पाथ, फर्स्ट पाथ है 1 to 2 और 2 to 3. यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट पाथ 1 से 2 जाना है, यस दैट पाथ इज अवेलेबल 1 से 2 और 2 से 3. ऐसे करके हम 1 से 3 तक पहुँच सकते हैं. ये हमारा पाथ हो गया फर्स्ट, P1. नाउ विच इज़ नेक्स्ट इज P2. P2 पाथ के अंदर क्या है, 1 4 और 4 3. 1 4 हम जा सकते हैं 1 4 से और 4 3 से. ये हमारा सेकेंड पाथ हो गया. आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों मिनिमल पाथ है. अगर हमको जाना है 1 से 3 हम नहीं जा सकते बिकॉज वो डायरेक्शन नहीं है 1 से 3 तक. 3 से 1 आना है दैट इज़ पॉसिबल, बट 1 से 3 इज़ नॉट पॉसिबल. सो हमें कोई भी एक नोड से जाके हमें वो टर्मिनल नोड तक पहुंचना है. सो 1 से 3 अगर हम जाएंगे, सो 1 से 2, 2 से 3, या तो फिर दूसरा एक रास्ता है 1 से 4, 4 से 3. सो दैट इज़ पॉसिबल. दिस इज़ द मिनिमल वे इन दैट वी कैन रिच अप टू द टर्मिनल नोड. नाउ नेक्स्ट इज P3. P3 में हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 2 4 4 3. 1 से 2 जाओ, फिर 2 से 4, 2 से 4 मतलब यहाँ से जाओ, और लास्ट है 4 से 3. यहाँ से हम ये नोड को, ये एज को कंसिडर करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं. सो दैट इज़ P3. नाउ नेक्स्ट इज़ P4. P4 इज़ 1 से 2 जाना है, फिर 2 से 4 जाना है, फिर 4 से 1 जाना है, वापस यहाँ पे जाना है, और फिर 4 से 1 जाना है, और फिर 1 से 2 जाना, और फिर 2 से 3 जाना है. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पाथ है, लेकिन फिर भी हम पहुंच सकते हैं 1 से 3 तक. यहाँ पे अगर आप ये एजेस कंसिडर करें और यहाँ पे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे कोई भी पाथ हमें रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन पाथ अलग अलग लिए हुए हैं. 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 1, फिर 1 से 2, और वापस 2 से 3. ओके, कोई भी पाथ रिपीट नहीं है, वो ध्यान रखें. फिर P5 में क्या हुआ है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1, वापस 1 से 4, और फिर 4 से 3. ये पाथ 2 बार यूज़ हो रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे हमने 2 बार ट्रावर्स किया है बिकॉज अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए. नाउ नेक्स्ट इज P6 अगर हम कंसिडर करें, सो 1 से 1 एक ही बार, आप जितनी भी बार इसको इन्फाइनाइट लूप में भी डाल सकते हो, इसीलिए यहाँ पे डैश डैश लिखा हुआ है. फिर वापस 1 से 2 और 2 से 3 यहाँ पे पहुँच सकते हो. ऐसे अलग अलग पाथ यू कैन कंसिडर फॉर दिस ग्राफ. नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ विल डिराइव सम डेफिनेशंस. अगर आप ये ग्राफ को ध्यान में रखो, फिर आपको वो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी. ठीक है. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज अ पाथ इन डायग्राफ इन विच द एजेस आर ऑल डिस्टिंक्ट. अगर आपकी ऑल एजेस डिस्टिंक्ट है पाथ के अंदर, तो वो आपका कौन सा पाथ कहलाएगा, सिंपल पाथ.
नाउ एजेस डिफरेंट मीन्स क्या है, अगर आप एक एजेस से एक बार ट्रैवर्स कर चुके हो तो वो एजेस से आप दूसरी बार ट्रैवर्स नहीं कर सकते हो। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, अगर आप 1 से 4 तक एक बार ट्रैवर्स कर चुके हो तो आप 4 से 1 मतलब 1 और 4 नोड आपका 2 बार यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट डेफिनेशन देखो तो अ पाथ इन विच ऑल द नोड्स थ्रू विच इट ट्रैवर्स आर डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्री पाथ। यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट मीन्स व्हाट, यहाँ पे अगर हम 1 से 4 जा सकते हैं और 4 से 1, ये हमारा डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने आगे ही देखा है डेफिनेशन। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, यू कैन कंसिडर ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे हम 1 4 और 4 1 यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट कैन बी अ एलिमेंट्री पाथ। सो यहाँ पे हम देखते हैं every elementary path of a digraph is also simple. The graph P1, P2 and P3 digraph of the digraph in figure 6 are elementary. यहाँ पे हम देखते हैं elementary मतलब क्या है कि जो हमारे पाथ है P1, P2 और P3, ये हमारे जो पाथ्स है वो सारे पाथ्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। वो सारे पाथ कहीं पे भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दैट वी कैन कंसिडर। बट नेक्स्ट जो हमारा है, वाइल P5 इज सिंपल बट नॉट एलिमेंट्री। P5 हमारा पाथ क्या है, P5 के अंदर मैंने ऑलरेडी कहा है वो सिंपल है। सिंपल मतलब क्या है, मैंने आगे जो कहा है वो मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ। सिंपल मतलब क्या है, आप यहाँ पे एजेस जो है आपकी वो कंसिडर कर सकते हो 1 से 4 और 4 से 1। या आपके दो एजेस अलग अलग हो गई, भले ही आपका रूट वो रिपीट हो रहा है, आपका नोड रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी एजेस अलग अलग है। वाइल इन सिंपल पाथ इट इज़ नॉट अलाउड, सॉरी इन एलिमेंट्री पाथ इट इज़ नॉट अलाउड, बट इन सिंपल इट इज़ अलाउड। अगर आप 1 से 4 और 4 से 1 जा रहे हो तो ये अलाउड है, लेकिन एलिमेंट्री में वो अलाउड नहीं है। सो P4 आपका जो पाथ है, यहाँ पे आप 4 1 और 1 2 ले रहे हो, सॉरी 4 1 सॉरी P5 अगर आप 4 1 और 1 4 ले रहे हो यहाँ पे, सो इट इज़ सिंपल बट इट इज़ नॉट एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब क्या है, आप वही पाथ को वापस नहीं यूज़ कर सकते हो। सो 1 4 एंड यहाँ पे आपका सिंपल हो जाएगा, लेकिन वो एलिमेंट्री नहीं होगा, ठीक है। Now what is next? Next definition is a path which originates and ends in the same node is called cycle. Obviously अगर आप एक पाथ के अंदर मतलब सेम नोड आपका ओरिजिन नोड और एंडिंग नोड सेम होगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, साइकिल। साइकिल इज कॉल्ड सिंपल इफ इट्स पाथ इज सिंपल। अगर आपका पाथ सिंपल होगा तो वो आपकी साइकिल भी क्या होगी, सिंपल। दैट इज नो एज इन द साइकिल अपीयर्स मोर देन वंस इन द पाथ। मतलब क्या है उसका कि कोई भी एज आपकी इन द साइकिल अपीयर्स मोर देन वंस, मोर देन वन आपकी कोई भी एज नहीं आ सकती है, ठीक है। और अ साइकिल इज कॉल्ड एलिमेंट्री इफ डज नॉट ट्रैवर्स थ्रू एनी नोड मोर देन वंस। मतलब सिंपल पाथ में क्या है, आपकी नोड, आपकी जो एज है वो एज रिपीट नहीं हो सकते हैं। मतलब आप ये दो डिस्टिंक्ट एजेस ले सकते हो, लेकिन फॉर एलिमेंट्री नोड्स कैन बी रिपीटेड। मतलब आप एक बार 1 से 4 4 से 1 जा सकते हो, मतलब एक बार आप 1 से 4 और 4 से 1 गए, फिर आप दूसरी बार वो सेम नोड नहीं यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने वही किया है, 4 1 हमने एक बार यूज़ कर लिया तो हम 1 4 वापस नहीं यूज़ कर सकते फॉर एलिमेंट्री पाथ। बट फॉर सिंपल पाथ दिस टू एजेस आर डिस्टिंक्ट, these two edges are distinct, so we can call it as simple. So that is the difference between simple and elementary. In simple, no edges, age can't be repeated, but in elementary even nodes can be repeated. So elementary is the strict version, you can say that strict version of simple. So here in this graph some cycles has been considered, that is 1 1 1 2. First is 1 1 1 1 is a loop here. Second cycle is 1 2 2 1, that is 1 2 2 1. This is the cycle. Cycle is what, your originating and ending node is same. So here your originating node is 1 and your ending node is 1. So here that is also one cycle. So 1 2 2 and 2 2 1. Which is the next size, C3. C3 is 1 2 2 3 and 3 1. 1 2 2 3 and 3 1. This is also one cycle because your originating and ending node is 1.
Likewise, you have C4 and C5. For that, you can consider also, you can check it also. A simple digraph which does not have any cycle is called acyclic. अगर आपके पास सिंपल डायग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल नहीं है, सो वो ग्राफ आपका क्या कहलाएगा? एसाइक्लिक. Now next definition is reachable. A node V of a simple digraph is said to be reachable. Reachable means accessible from the node U of the same digraph if there exists a path from U to V. एकदम सिंपल डेफिनेशन है. अगर कोई भी नोड है वो रीचेबल कब कहलाएगा? अगर आपके पास U से V में कोई पाथ है, U से V के अंदर कोई पाथ है, वो रीचेबल वहाँ तक होगा, तो वो आपका नोड क्या कहलाएगा? रीचेबल. Note that concept of reachability is independent of the number of alternate path from U to V. अगर आप कोई भी अल्टरनेट पाथ आप कितने भी लो, लेकिन अगर रीचेबल है वो नोड, देन इट इज़ ओके. ये सारे पाथ जो है ये हमारे सारे रीचेबल है, क्योंकि 1 से 3 तक वो सारे पाथ जा रहे हैं. सो ऑल आर वैलिड. फॉर द ग्राफ गिवन इन फिगर 6 वी हैव गिवन पाथ P1 to P5 फ्रॉम नोड 1 to 3. अगर हम 1 से 3 तक जाएँ तो हमें P1 से P5 तक हमारा नोड्स है. टू एस्टेब्लिश द रीचेबिलिटी ऑफ द नोड 3 फ्रॉम नोड 1. 3 से अगर हमें 1 जाना है तो हमने इतने सारे पाथ्स लिए हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इफ अ नोड V इज रीचेबल फ्रॉम नोड U, देन पाथ ऑफ मिनिमम लेंथ फ्रॉम U to V इज कॉल्ड जियोडेसिक. पाथ ऑफ मिनिमम लेंथ, जो भी हमारा जितने भी हमने लिए हैं पाथ अलग अलग 1 से 3 तक पहुंचने के लिए, उसमें जिसकी भी मिनिमम लेंथ होगी वो हमारा होगा जियोडेसिक. मिनिमम लेंथ मतलब क्या? हम लेंथ कैसे काउंट कर सकते हैं? दैट इज़ द नंबर ऑफ एजेस. मतलब यहाँ पे हमारा जियोडेसिक क्या होगा? P1 और P2 दोनों जियोडेसिक होंगे, बिकॉज उसका लेंथ क्या है? दोनों का 2 है. सो यू कैन कंसिडर द लेंथ ऑफ द जियोडेसिक फ्रॉम द नोड U टू नोड V इज कॉल्ड डिस्टेंस. डिस्टेंस, हम इसको डिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं, और डिस्टेंस को डिनोट कैसे करेंगे? D ऑफ U to V. नाउ नेक्स्ट इज it is some by our definition reachability is reflexive. Now how it is reflexive? Because you can consider 1 to 1 is also reachable, 2 to 2 is also reachable, so it can be reflexive. Now next is if that exists a path from U to V and V to W, then it is clearly that अगर आपके पास 3 नोड्स है U, V और W, अगर आपके पास U से V का पाथ है, V से W का पाथ है, तो आप कैसे पहुंच सकते हो यहाँ से U से V और V से W? तो आप ऑब्वियसली कहाँ से पहुंच सकते हो? U से W आप पहुंच ही सकते हो. ठीक है. फ्रॉम U to V और V से W. भले ही आपके पास U से W का डायरेक्ट पाथ नहीं है, लेकिन आप थ्रू नोड V यू कैन रीच अप टू नोड W. सो हियर इन अदर वर्ड्स रीचेबिलिटी इज ऑल्सो ट्रांजिटिव. सो रीचेबिलिटी का आपका क्या है? वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है. यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, दैट इज ट्रायंगल इक्वालिटी. यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ U एंड V इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0. इफ इट इज 0, यहाँ पे हम अगर देखें तो डिस्टेंस ऑफ U to V प्लस डिस्टेंस ऑफ V to U, यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्टेंस ऑफ U to V एंड V to W, ये ऑलवेज क्या किससे ग्रेटर होगा? U से W तक. सो that is the triangle equality that you have to remember. Now next is definition of reachable set of V. What is reachable set of V? For a digraph G equals to VE, the set nodes which are reachable from the given V is to be reachable set of V. मतलब आप कोई भी एक नोड ले लो, वो एक नोड से आप कितने नोड तक जा सकते हो. ठीक है. अगर आपके पास ये अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ से हम अगर V हमारा नोड है, U हमारा नोड है, तो हम U से कितने नोड तक जा सकते हैं? दैट इज़ द रीचेबल सेट ऑफ U. गेटिंग इट? आप कोई भी नोड, बीच का भी कोई भी नोड यूज़ कर सकते हो. अगर आपको U का रीचेबल सेट फाइंड करना है, सो वो क्या आएगा? V और W. खुद U भी आएगा, बिकॉज U से U हम जा सकते हैं, U से V भी जा सकते हैं, U से W भी जा सकते हैं. सो दैट इज़ द रीचेबल सेट ऑफ U. नाउ how we can denote reachable set of V? Reachable set of V is written as R of V. V means your node
and R means your reachable set. So here consider this diagram. This diagram has been also asked in exam, so kindly well prepare for this. So here you can say that this is the diagram. For first of all, what you have to do for this reachable set of view and node base both are connected concepts. So here first of all you have to find out which are the reachable sets of different nodes. So here if we find the reachable set of set V, so सेट V से नोड V, सो नोड V से हम कहाँ तक जा सकते हैं? सो नोड V से वी कैन रिच अप टू यस V2 V1 खुद तो आएगा ही, फिर V1 से V2 अगर हम जा सकते हैं, यस V1 से V2 जा सकते हैं, V2 से V1 से V3, यस थ्रू नोड V2 वी कैन रिच अप टू V3. V1 से V4 तक कोई रास्ता है, यस वी कैन मूव लाइक दिस, वी कैन ट्रैवर्स लाइक दिस. V1 से V5, यस V5 भी आएगा. V1 से V6, यस V6 भी आएगा. V7, नाउ सी हियर V1 से V7 तक कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, कोई नोड से भी आप नहीं जा सकते, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन वी कांट यूज. सो V1 से V7, सो V7 रीचेबल सेट में नहीं आएगा V1 के लिए. V8, ऑब्वियसली V7 और V8 ये दोनों नोड्स ऐसे हैं कि हमें नहीं मिलेंगे V1 के रीचेबल सेट में. और V9 और V10 ये तो दोनों आइसोलेटेड नोड है, सो वी कांट चेकअप फॉर दैट. सो V1 के रीचेबल सेट में क्या आएगा? V2, V3, V4, V5, V6, ओनली दिस. नाउ फॉर द अदर नोड्स V2 के लिए भी ऑलमोस्ट सेम आएगा, बिकॉज V2 से V7 तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है. सो V2 खुद आएगा. V1, V3, V4, V5, V6, सेम वे V5 तक सारे के लिए ये सारे रीचेबल सेट आएंगे. नाउ फॉर V6, यहाँ पे हम देख सकते हैं रीचेबल सेट ऑफ V6. अगर हम V6 देखें तो रीचेबल सेट ऑफ V6 से हम कोई भी नोड तक नहीं जा सकते, ये आप देख सकते हो, बिकॉज यहाँ से हम ऐसे भी मूव नहीं कर सकते, यहाँ पे भी मूव नहीं कर सकते, और V9 और V10 तक तो ऑब्वियसली नहीं पहुँच सकते. सो V6 का रीचेबल सेट क्या रहेगा? V6 ओनली. V7, नाउ V7 से हम कहाँ तक जा सकते हैं? V7 से हम कहाँ तक जा सकते हैं? V7 से V7 तक तो जा ही सकते हैं. V6, यस वी कैन मूव अप टू V6 ऑल्सो. V7 से हम V6 तक जा सकते हैं, लेकिन V7 से हम V5 तक नहीं जा सकते. ये आप देख सकते हो, V7 से यहाँ से हम जाएंगे, फिर यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है. ठीक है, सो V7 का रीचेबल सेट क्या आएगा? V6 और V7. नाउ V8 का रीचेबल सेट क्या आएगा? V8 से हम V7 तक जा सकते हैं, यस जा सकते हैं. V8 से V8 तक जा सकते हैं, और V8 से V6 तक जा सकते हैं. मतलब रीचेबल सेट ऑफ V8 क्या आएगा? V6, V7 और V8. V9 तो आइसोलेटेड है, सेल्फ लूप है, मतलब क्या आएगा? V9. और V10 क्या आएगा? वो भी खुद अपना रीचेबल सेट होगा. सो यहाँ पे पहले हमने सारे रीचेबल सेट फाइंड कर लिए, कौन सा नोड कहाँ तक जा सकता है, कौन से नोड तक पहुँच सकता है, दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट. नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन फॉर द नोड बेस. नाउ व्हाट इज नोड बेस? In a digraph G equals to VE, a subset X belongs to V is called a node base if its reachable set is V and if no proper subset of X has this property. Now what is reachable set is V, मतलब हमारे जो reachable sets जो है वो reachable sets का हमें करना है. reachable sets कितने हैं जिससे हमारे सारे vertices cover हो जाएंगे. मतलब यहाँ पे हम अगर V1 का देखें, रीचेबल सेट ऑफ V1, तो यहाँ पे सिर्फ 6 ही वर्टाइसिस कवर हो रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा सेट बनाना है जिससे हमारे सारे वर्टाइसिस कवर हो. यहाँ पे हमने देखा है इफ़ इट्स रीचेबल सेट इज़ V मतलब हमारे सारे वर्टाइसिस अंदर हमारे सारे वर्टाइसिस कवर हो रहे हैं. ठीक है, सो ऐसा कौन सा नोड बेस बनेगा यहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ पे हम कंसिडर अगर करें तो फर्स्ट नोड बेस हम कंसिडर करें V1 से हम कितने नोड तक पहुँच सकते हैं? V6 तक, मतलब 6 नोड हमारे कवर हो गए. अब हमारे नोड कौन से बाकी रहे? 7 और 8. ठीक है, सो 7 और 8 कहाँ पे कवर हो रहा है? सो 7 और 8 ऐसा एक ही है, V8 से हो रहा है, सो V1 एंड V8. नाउ और कौन से वर्टाइसेस बाकी रहे? 9 और 10. 9 और 10 को तो आपको अलग से लिखना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसका तो सिर्फ एक ही है, 9 और 10 दोनों को आपको लिखना पड़ेगा. सो दैट इज़ द वन नोड बेस, दैट इज उससे सारे हमारे यहाँ पे वर्टाइसेस कवर हो रहे हैं.
नाउ नेक्स्ट और एक नोड बेस ले सकते हो, V1 को आप V5 से रिप्लेस कर सकते हो, ऑब्वियसली V5 भी उसका क्या आएगा, V1 V2 V3 V4 V5 6, सो ये भी आप कवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे और 3 नोड्स जो है वो सेम रहेंगे, क्योंकि ऐसा एक ही नोड है जिससे 3 ये कवर हो रहे हैं, 3 वर्टाइसेस कवर हो रहे हैं। 9 10 को तो आपको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा बिकॉज दे आर आइसोलेटेड नोड्स। Getting it? So this is how you can find the node base. These two are the node base for this diagram. Getting it? Now what is next? Next are some definitions. First definition is we call a graph weakly connected if it is connected as an ordered graph in which directions of the edges are neglected. Now अगर आपका वीकली कनेक्टेड अगर आपको ग्राफ देखना है, सो वीकली कनेक्टेड ग्राफ आपका कैसा होगा, जहाँ पे आपकी डायरेक्शंस नेग्लेक्ट होगी। डायरेक्शंस मीन्स व्हाट, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि ये जो है वो ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं, तो यहाँ पे ए बी सी, सो आप यहाँ पे उसकी डायरेक्शन नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन नेग्लेक्ट करें तो वो कैसा ग्राफ बन जाएगा हमारा, अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर आप डायरेक्शन नहीं यूज़ कर सकते हो। सो ये ग्राफ को आप अगर ये ग्राफ में चेंज करो तो आपका ये कौन सा ग्राफ बन जाएगा, वीकली कनेक्टेड ग्राफ। सो दैट यू हैव टू कंसिडर। Now which is next definition? A simple digraph is said to be unilaterally connected if for any pair of the node of the graph at least one of the node of the pair is reachable from the other node. अभी यहाँ पे क्या है, अगर आपका एक भी पैर कनेक्ट हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि A to B अगर यहाँ पे कनेक्टेड है तो यहाँ से B to A भी कनेक्ट होना चाहिए। यूनिलेटरली मतलब क्या, कोई भी एक मतलब हमारा A और B वर्टाइसिस है तो उसके अंदर कोई भी एक साइड अगर हमारा एज कनेक्टेड हो आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड, दैट इज़ ऑल्सो वैलिड। ओके, अगर हम A से B से सिर्फ A और B के बीच में सिर्फ यही डायरेक्शन है, A और B के बीच में सिर्फ यही डायरेक्शन है, देन ऑल्सो यूनिलेटरली मतलब हम एक एज कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमारा ये नहीं होगा फिर भी चलेगा, ठीक है। सो दैट इज unilaterally connected. Now next is strongly connected. If for any pair of the nodes of the graph both the node of the pair are reachable from one another, यहाँ पे दोनों नोड कंपलसरी यहाँ पे आपका कनेक्ट होना चाहिए। अगर हम A से B तक जाए सो B से A B होना चाहिए और A से B भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारा जो डायग्राम है वीकली कनेक्टेड मतलब क्या होगा, आपको डायरेक्शन कंसीडर ही नहीं करनी है, आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट दिखा सकते हो अगर वो दोनों कनेक्टेड है तो। यूनिलेटरली का मतलब क्या है, कोई भी एक साइड आपकी अगर कनेक्टेड होगी तो भी चलेगा, मतलब वो यूनिलेटरली होगा। और स्ट्रांगली कनेक्टेड मतलब क्या है, कंपलसरी आपकी दोनों एजेस कनेक्टेड होनी चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वीकली, यूनिलेटरली एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड। Now consider this example. This example is also important. So first we'll see some examples. This is the example. First example is for strongly connected. So see here all the यहाँ पे हम A से B का अगर देखें सो A से B यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, B से A हम जा सकते हैं। यहाँ पे कोई डायरेक्ट एज नहीं है लेकिन फिर भी हम B से A जा सकते हैं, कैसे, इस नोड को यूज़ करके। सो इट इज़ पॉसिबल। सो हम यहाँ पे ऐसे कंसिडर करें, सो A से B और B से A दोनों कनेक्टेड है, सो येस इट इज़ स्ट्रांगली कनेक्टेड। सेम वे फॉर BD इज D से B भी कनेक्टेड है और B से D भी कनेक्टेड है। फ्रॉम दिस एज वी कैन रीच अप टू D। सो यहाँ पे ये पूरा डायग्राफ जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है, ये जो हमारा डायग्राफ है वो क्या है, B इज़ वीकली कनेक्टेड। वीकली कनेक्टेड बट नॉट यूनिलेटरली कनेक्टेड। वीकली कनेक्टेड मतलब क्या है, यहाँ पे वीकली कनेक्टेड मतलब हमें ये डायरेक्शन कंसीडर ही नहीं करनी है। अगर हम ये डायरेक्शन कंसीडर नहीं करें तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो हियर यू कैन कंसिडर समथिंग लाइक दिस ABCD. सो इट इज़ कनेक्टेड, वी कैन से दैट। सो इट इज़ वीकली कनेक्टेड बट नॉट यूनिलेटरली कनेक्टेड। And last figure is says unilaterally connected but not strongly connected. यहाँ पे कोई भी एक एज कनेक्टेड है
लेकिन वो क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। ऑब्वियसली स्ट्रांगली कनेक्टेड क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम अगर बी ए से बी जाए, लेकिन बी से ए तक जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे से भी हम नहीं जा सकते और यहाँ से भी नहीं जा सकते। बट येस, इट इज़ यूनिलेटरली कनेक्टेड बिकॉज ऑल दी एजेस, यहाँ पे हम ए से बी जा सकते हैं, सो ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी जा सकते हैं, येस इट इज़ कनेक्टेड, सी से डी जा सकते हैं, येस इट इज़ कनेक्टेड, एंड डी से ए जा सकते हैं, येस इट इज़ कनेक्टेड. Okay, so this is unilaterally connected. Now for the other definition, for a simple digraph, a maximum strongly connected subgraph is called strong component. अगर आपके पास मैक्सिमम स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ के अंदर जितने भी सब ग्राफ आपको मिलेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स. और मैक्सिमम यूनिलेटरली कनेक्टेड ग्राफ के अंदर जो आपको सब ग्राफ मिलेंगे उसको वो आपके क्या कंपोनेंट्स हो जाएंगे, यूनिलेटरली और वीक कंपोनेंट्स. दोनों ग्राफ, अगर यूनिलेटरली ग्राफ के अंदर जो कंपोनेंट्स मिलेंगे, जो सब ग्राफ मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिलेटरली कंपोनेंट्स, और वीकली कनेक्टेड ग्राफ के अंदर हमें जो मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वीक कंपोनेंट्स. नाउ कंसीडर दिस एग्जांपल. यहाँ पे ये एक डायग्राम है. ये डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग डायग्राफ हमें कौन कौन से मिल रहे हैं. सो 1, 2 एंड 3. 1, 2 और 3 में यहाँ पे हम देखें 1, 2. सो 1, 2 अगर हम देखें तो 1 से 2 जा सकते हैं और 2 से 1 भी आ सकता है. सो यस, 1 और 2 का सेटिस्फाई है. 2 से 3 जा सकते हैं, 3 से 2 जा सकते हैं, यस 3 से 2 भी जा सकते हैं. 1 से 3, 3 से 1, 1 से 3, 3 से 1 जा सकता है और 1 से 3 भी जा सकता है. So 1, 2, 3 is a strong component. Yeah, 1, 2, 3 the first, that is also strong component. यहाँ पे अगर हम दूसरे strong component की बात करें तो 3 से 4, लेकिन 4 से 3 हम नहीं जा सकते. So इसको हम combine नहीं कर सकते. So 4 अपना खुद का आएगा और 5 खुद और 6 खुद का आएगा. मतलब इसको हम combine नहीं कर सकते बिकॉज 4 से 5 अगर हम जाए तो 5 से 4 तक कोई रास्ता नहीं है, 5 से 6, 6 से 5, 6 से 5 तक रास्ता है, लेकिन 5 से 6 तक हम नहीं जा सकते. सो दैट यू हैव टू कंसीडर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट. अगर आपको फाइंड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो. नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक कंपोनेंट. वीक कंपोनेंट का मतलब क्या है कि हमें ये डायरेक्शन कंसिडर नहीं करनी. अगर हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करें तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे. मतलब कि आपके सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहेंगे, तो वो आपका वीकली कनेक्टेड हो जाएगा, दैट इज़ वैलिड. और अगर हम यूनिलेटरल कंपोनेंट्स की बात करें, सिर्फ एक बाजू अगर वो कनेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 एक साइड से सारे कनेक्टेड है, लेकिन हमारा जो 6 है, 6 वो 6 हमारा लास्ट जो है वो कनेक्टेड नहीं है, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा सबसे. सो ये हमारा 3 कंसेप्ट हो गए, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, वीक कंपोनेंट और यूनिलेटरल कंपोनेंट. सो यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस में ग्राफ थियोरी है, वो ग्राफ थियोरी ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. मैंने ऑलरेडी आपके लिए असाइनमेंट्स पोस्ट कर दिया है. सो वो असाइनमेंट्स आपको ये वीडियो देख के सॉल्व करने हैं और यू हैव टू सबमिट इट. सो थैंक यू.